There is perhaps nothing which so occupies the middle position of mathematics as trigonometry. And in this lecture, we are going to talk about the trigonometric ratios for complementary angles. And we already know what are trigonometric ratios. And if you don't know about trigonometric ratios, so do visit my first lecture of this chapter. Now let us talk about complementary angles. So what are complementary angles? So in small classes also we learned that complementary angles are those angles whose sum is equals to 90 degree, and we know in a right angle triangle one angle is of 90 degree. So clearly we can say that the sum of all angles in a triangle is equals to 180 degree, and we know one angle is equals to 90 degree. So we can say that the sum of other two angles in a right angle triangle is of 90 degree. That means if in this triangle we know that angle B plus angle A plus angle C will be equals to 180 degree, and clearly we know that angle B is a right angle, so we can say 90 degree plus angle A plus angle C will be of 180 degree, and from this we can say that angle A plus angle C is equals to 90 degree. So let us rearrange this equation, that is our equation number 1. So if we rearrange this equation, so we get that angle C is equals to 90 degree minus angle A, and let's take this simple as 90 degree minus A, not mentioning the angle. Let's say these are theta, and in this equation, that is our equation number 2, if we just put the sides of the triangles and we're gonna talk about the values of sine theta, cos theta, cosec theta, so we will be getting something that are the trigonometric ratios for complementary angles. And how we will be getting this? We will be getting this from, let's say I am putting the value of sine theta, and we know the value of sine theta is equals to BC upon AC. Okay, that is not BC upon AC. Let's talk about PBP HHB. So in this, sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. Okay, and if you don't know this about this trick, so do visit my first lecture so that you can clear your concept about this trick also. Okay, so perpendicular upon hypotenuse, and here in this we have the theta is this angle, that is angle C. So according to this, अगर मैं इसको थीटा लूँ तो मेरा परपेंडिकुलर विल बी माई ए बी, एंड मेरा हाइपोटेन्यूस ऑफ कोर्स मेरा ए सी होने वाला है. तो मैं यहाँ इस वाले की वैल्यू ये 90 डिग्री माइनस ए दैट इज साइन थीटा ले रही हूँ. ठीक है, सो क्लियरली आई कैन से कि मेरे को जो ये फॉर्मूला मिला है वो कुछ इस तरीके का मिला है, और मुझे पता है कि ये जो ई बी अपॉन ए सी है, ये जो ई बी अपॉन ए सी है, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म्स में सोचूं तो मुझे पता चलेगा कि ई बी अपॉन ए सी वो मेरा कॉस थीटा है. तो मैं ये कह सकती हूँ कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल ए और से एंगल थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा. सिमिलरली अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें अलग अलग साइड्स लेकर और अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेकर, तो हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे जिनको हमने नाम दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एंड दीज रेशियोज आर साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए दैट इज कॉस ए, tan 90 डिग्री माइनस एंगल ए इज इक्वल्स टू कॉट ए, sec 90 डिग्री माइनस एंगल ए इज इक्वल्स टू cosec a, एंड इसका थोड़ा सा इन्वर्स यानी कि अपोजिट होने वाला है, cos 90 डिग्री माइनस एंगल ए इज इक्वल्स टू साइन ए, cot 90 डिग्री
minus angle A will be equals to tan A. Similarly, cosec 90 degree minus angle A will be equals to sec A और से sec थीटा. तो ये जो फॉर्मूलाज है वो आपकी पूरी एक्सरसाइज 8.3 में यूज होने वाली है. ठीक है, तो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला बाय हार्ट. ओके, एंड इफ यू फाउंड सम प्रॉब्लम टू लर्न इट, सो आई हैव अ ट्रिक फॉर ऑल ऑफ यू कि आप इसको कैसे इजीली याद कर सकते हैं. तो इसको याद करने का बहुत सिंपल सा ट्रिक ये है कि आप सिंपल लिख लीजिए साइन को करो, साइन को करो पहला. दूसरा टेन कॉट लो और से टेन कोट लो, LO लो. एंड थर्ड वन इज सेक से करो. साइन को करो मतलब साइन एंड कोस ए. ठीक है, 10 कोट लो यानी कि 10 यानी 10 कोट लो, 10 कोट लो यानी कि 10 कोट लो. 10 और कोट का एक रिलेशन है. इसी तरीके से साइन और कोस का एक रिलेशन है जिसे हम कहेंगे साइन को करो. इसी तरीके से जो रिलेशन हमने सेक और कोसेक के लिए लिया है वो है सेक को सेक से करो, सेक को सेक से करो. यानी कि हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरीके से सेक को सेक से करो. तो ये था आपके लिए ट्रिक जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी इन सारी आइडेंटिटीज को याद करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो मिड में जो होने वाला है ब्रैकेट में वो आपका सिंपली 90 डिग्री माइनस थीटा होने वाला है. ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है. ट्रिक बहुत सिंपल सी है और अगर आपने ये याद कर लिया हो तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक सो दैट आपके लिए ये जो टॉपिक हो थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि कैसे आपको यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि इवेल्युएट करना है आपको वैल्यूज को, इवेल्युएट 1065 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री. तो हमें पता है कि हमें क्या करना है. हमें यहाँ पर जो थीटा दे रखा है या फिर मैं कहूँ एंगल ए जो दे रखा है वो आपको 65 डिग्री दे रखा है और एक दे रखा है 25 डिग्री. तो आप सिंपली फॉर्मूलाज को पुट कर दीजिए. तो फॉर्मूला में हमने क्या बात की थी, 10 कोट लो और उसका उल्टा कोट 10 लो, यानी कि 10 कोट लो या कोट 10 लो. ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमें पता है एक फॉर्मूला मैंने जो लिखा था कि कोट ए इज इक्वल्स टू 10 90 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ए यानी कि थीटा. ठीक है, ये है फॉर्मूला. ये तो हो गया आपका कोट के लिए और 10 के लिए, दोनों के लिए. अब हम इसमें वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो थीटा की जगह हम वैल्यूज को जो अच्छी तरीके से पुट कर लेते हैं. तो कोट ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, हम 25 डिग्री पुट करेंगे. नाउ 10 लिखेंगे हम 90 डिग्री. अब इस वाले एंगल के लिए हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे 65 डिग्री. सो फ्रॉम हियर यू विल बी गेटिंग कि भाई तुम्हारा कोट 25 डिग्री तो एज इट इज रहेगा. अब यहाँ से मैंने देखा 10 तो सिंबल लिख लीजिए एज इट इज. 90 डिग्री माइनस 20 सॉरी यहाँ पर 25 डिग्री लिखना है. 25 डिग्री हमें मिलता है 65 डिग्री. 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 65 डिग्री. दैट इज कॉट 25 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 65 डिग्री. ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको सिंपली लिख लेंगे कि tan 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री विल बी इक्वल्स टू tan 65 डिग्री अपॉन कॉट 65 डिग्री. देखो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको मैं बताती हूँ क्या करना होता है कि ऊपर हो या नीचे हो या प्लस हो या माइनस हो, आपको कोई भी एक टर्म को एलिमिनेट करना पड़ता है. या तो आप 10 वाला एलिमिनेट कर दो, हटा दो, 10 को सिमिलर कॉट की तरह बना दो, या तो कॉट को हटा के 10 बना दो. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉट को यहाँ पर हटाकर 10 बना दिया. मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी तो मैंने यहाँ पर देखा कॉट 25 डिग्री tan 65 डिग्री के इक्वल है. तो मैंने कॉट 25 डिग्री को हटा दिया और जब मैंने कॉट 25 डिग्री को हटा दिया तो मुझे मिल गया tan 65 डिग्री. और जब मैंने इसे यहाँ पर पुट किया तो मुझे मिल गया आपका 1. एक बार और समझा देती हूँ क्या किया मैंने. ये मेरे को क्वेश्चन दिया गया था, इसमें मेरे को थीटा दिए गए थे. ठीक है, हमने फॉर्मूला याद किए कि साइन को करो, साइन कॉस
इनका एक रिलेशन है, टेन कोट लो यानी कि टेन का और कोट का एक रिलेशन है, सेक को सेक से करो यानी कि सेक और कोसेक का एक रिलेशन है। यहाँ पर हमें टेन और कोट का रिलेशन पूछा गया था। टेन और कोट का रिलेशन क्या था, टेन कोट लो। टेन कोट लो का यानी कि फॉर्मूला यहाँ पर था कुछ इस तरीके से, फिर से लिख देती हूँ यहाँ पर कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा या एंगल ए इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसी का उल्टा फॉर्मूला, मैंने ये फॉर्मूला था, मैंने इसको उल्टा कर लिया, रिवर्स कर लिया कि कॉट 90 डिग्री माइनस एंगल ए इज इक्वल्स टू टेन ऑफ ए। ये मेरे को फॉर्मूला दिया हुआ भी था। ठीक है, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला आई हैव यूज्ड। ठीक है, और मैंने इस फॉर्मूला में अपना थीटा पुट किया। जो थीटा मैंने कौन सा पुट किया, थीटा जिसको मुझे एलिमिनेट करना था, इसको मुझे एलिमिनेट करना था, तो मैंने इसका जो थीटा था वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इस फॉर्मूले में, और फिर मुझे मेरा आंसर मिल गया। सिंपली मैंने कैलकुलेशन कर दी। इसमें कैलकुलेशन तो होती नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में वैसे तो, और सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड द ट्रिक दैट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। एंड इफ you like my video, do subscribe my channel and hit the like button. Don't forget to press the bell icon so that you will be notified when I am sending my videos. Thank you.